So, hello, dear friends. Welcome to our next episode of Share and Care, a podcast by Dr. Sona Kaushal. So, it's my new venture into podcasting, and I try to bring to you people of such relevance who are doing such good work and who have had their struggles of up and down, and they're going to tell you about their journey and about what they are doing for the society and for the people. So, welcome to my podcast, Share and Care. So today my eminent speaker is Shakti Manocha. She's a very dear friend of mine. She is in Dehradun and she has had a lovely journey from a teacher to a wellness coach. And I'm telling you, it's not easy. Both the jobs are very difficult. Being a teacher, I know it's so tough because when I go for workshops, I face the stress on the teachers' faces and on their minds. And she's been a teacher. She's seen it all. She's been there and now she's a wellness coach because that is the need of the hour. So, welcome, Shakti. Welcome to our podcast. Thank you. Thank you so much for giving me the opportunity to share my experiences and my feelings. Thank you so much, So, Sona ji. Shakti, will you tell us something about your journey from a teacher to being a wellness coach and Uh, why did you do so? okay. Actually, I was a simple teacher. Hmm. I have taught for 28 years. I was in St. Joseph's for 15 years. And during my teaching tenure, I had other problems also. Yeah. What I've observed, like in my family, my mother-in-law was a cancer patient, then my Yeah. father-in-law was also a cancer patient, Hmm. और फिर उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को भी ब्रेन ट्यूमर हो गया था. सो बहुत सारी सफरिंग्स, बहुत सारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स को देखते देखते एंड फाइनेंशियल भी सब चीजों को देखते हुए मैंने रियलाइज किया कि जो हम सब कुछ कर लेते हैं लाइफ में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है अपनी हेल्थ है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है. और उसका जो उनकी जो प्रॉब्लम थी उसकी उसका जो असर था वो मुझ पर भी आया. ग्रेट deep impact on my life also. Then I decided to do something for the fitness and health of my family as well as my loved ones. मैंने बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस देखी, अपनी सिस्टर, ब्रदर्स, इन सबको डायबिटीज एंड थायराइड एंड ऑल, एंड मेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, एंजाइटी देखा. देन आई रियलाइज आई मस्ट डू समथिंग फॉर माई फैमिली एंड फॉर द सोसाइटी. तो फिर मैंने I quit my job and then I pursued the yoga science. I did my master's in yoga science and then I did Yoga Alliance 200 hours का मैंने कोर्स किया. फिर उसके बाद डिफरेंट प्लेसेस पे जाके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किए, योगा रिलेटेड, अलाइनमेंट एंड माइंडफुलनेस, मेडिटेशन के बहुत सारे कोर्सेज किए, फ्रॉम मुंबई योगा इंस्टीट्यूट, फ्रॉम गोवा योगा इंस्टीट्यूट, देन सदगुरु जी के पास. सो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेकर आई. सो अल्टीमेटली मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपनी लाइफ में और लोगों की लाइफ में केवल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है. बाकी Very, सब तो हो जाता है लेकिन हेल्थ हो पाती है. very good, सो very good. टीचिंग से लेके योगा तक की ऐसे जर्नी चली. Excellent, excellent. And it's so remarkable. So it's quite a story, and I'm sure lots of people will learn from it. And this is called resilience, actually. Like you're bouncing back from the troubles which we face. And we should all develop that resilience because mental health is all about resilience. It's all because करेक्ट. mental health is good physical health. So, and nobody has ever taught us to be happy or taught us about mental health. In our generation, nobody spoke about it. Today, the generation राइट. is so lucky they're talking of mental health and its relevance. And of course, yoga has a very, very deep, connection to mental health. It calms you down. So just tell me, so when you take up this yoga, how do you feel that it affects the mental health? Like, how does yoga, classically, how does it help you with dealing with mental illness? Because you've seen a lot of it in school also, in your राइट. life also. So how does yoga help? ये Yeah, योगा हैज ए डीप कनेक्शन विद आवर मेंटल हेल्थ, फिजिकल yeah, एंड मेंटल. yeah. हम लोग हमेशा फिजिकल हेल्थ की, हम योगा को सोचते हैं कि बस फिजिकल हमने कुछ एक्टिविटीज कर ली, आसन कर लिए तो हमारा योगा हो गया. Correct. बट अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, योग के जो अष्टांग योग है, 8 Hmm. लिम्स योग है, वो Hmm. इम्पॉर्टेंट है, जिसमें Hmm. आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, देन प्रत्याहार,
धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब कुछ आ जाता है उसके या साथ। सो वो कंप्लीट जो है होलिस्टिक वेलनेस हम्म को हम योग बोल सकते हैं। सो करेक्ट उसमें जैसे हमारे आयुर्वेद में बड़ा अच्छा दिया हुआ है कि राइट पूर्णतः जो स्वास्थ्य है ना, वो किसको बोलते हैं पूर्णतः स्वास्थ्य, तो हम्म जिसमें आ जाता है कि आपको सम दोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया हम्म एंड प्रसन्नात इंद्रिय मन स्वस्थिति अभिधीयते, कि या जिसमें आपका आपके सारे दोष, वात पित्त कफ, ये तीनों दोष जो हैं ये सम होते हैं, एक नियंत्रण में होते हैं। आपकी मेटाबॉलिक फायर, आपके सारे धातु, आपकी मल की, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, और साथ साथ आपका मन भी प्रसन्न होता है, आत्मा भी प्रसन्न होती है, तभी आप पूरी तरह से स्वस्थ कहलाते हैं। तो वो करेक्ट पूर्णतः स्वस्थ होने के लिए आपको, जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ भी आ जाए, तो इसका मेंटल हेल्थ का और फिजिकल हेल्थ का पूरा कनेक्शन है। अब यदि हम प्राणायाम की बात करते हैं तो थ्रू ब्रीदिंग वी कैन ट्रीट दी मेंटल एलमेंट इजीली। ब्रीदिंग कैन कल्टिवेट द हैबिट ऑफ लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट, और हमारे हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जिसमें सेरोटोनिन, जो कि आपको काम करता है, आपकी बाकी आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करते हैं। हैप्पी हार्मोन्स यदि आपके प्रोड्यूस होंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी हैप्पी, यू विल बी रिलैक्स, आपको नींद अच्छे से आएगी, आपकी ओवर थिंकिंग नहीं होगी। तो ये सारी चीजों का भी हमारी मेंटल हेल्थ पर, योगा के थ्रू हम अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि वंडरफुल हमारे कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, उन्होंने योग की परिभाषा केवल एक ये दी है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो चित्त की वृत्तियां, क्योंकि टर्बुलेंस तो पूरा टाइम चलता ही रहता है हमारे माइंड में, उसको हम्म जब हम काम कर लेते हैं, उसको हम सम कर लेते हैं हम्म थ्रू प्राणायाम, ब्रेथ वर्क, ब्रीदिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन योगा। तो उस द्वारा हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो मैं can you unmute yourself can you unmute yourself yeah please. अच्छा, yeah ओके ओके, या, हाँ जी। सो so यही मेंटल okay, हेल्थ पे sorry, बहुत there's बड़ा, a technology hitch was here. So, नो प्रॉब्लम। Shakti, I would like to continue and ask you that yoga has a direct connect with breathing. Like when I talk to my patients and they are in stress and anxiety, so I say just calm down and just deep breathe because breathing has a direct role with your thinking. You know, what you're हाँ, thinking, how much you're thinking, if you focus on your breathing, everything calm. Because, remember, if you're anxious and stressed, your breathing goes hyper. If you're depressed, हम्म, it goes slow. With thyroidism, also, हम्म, your breathing is affected. So, यस, can you just tell us something about breathing and yoga? या। तो ब्रीदिंग जो है ना, वो प्रॉपर ब्रीदिंग, अभी तक हम जो ब्रीदिंग करते हैं ना, वो सारी शैलो ब्रीदिंग होती है। सो योग के थ्रू हम सीखते हैं कि हमें प्रॉपर ब्रीदिंग कैसे करना है, और उसमें हमें योगिक ब्रीदिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी तक हम अपनी लंग्स की पूरी कैपेसिटी को यूज भी नहीं करते आए हैं। सो योग में केवल ब्रीदिंग पे इसलिए फोकस किया जाता है कि ब्रीदिंग ही सब कुछ है, प्राण शक्ति को बढ़ाया जाता है। और मैं आपको एक छोटा सा इसको स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे पूरे शास्त्रों में भी दिया हुआ है, हमारे प्राणों को किस तरह से एलिवेट किया जाए, एनर्जी, वाइटल एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि प्राण सब कुछ है, ब्रीदिंग इज एवरीथिंग। क्योंकि हम पैदा होते हैं ब्रेथ के साथ और लास्ट ब्रेथ लेते हैं, तो इसी के बीच हमारा लाइफ चल रहा होता है। और भगवान शिव पार्वती को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं प्राणों के लिए कि प्राण जो है हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। क्योंकि यदि हमें कोई कष्ट होता है, कोई ट्रबल होता है, वी ऑलवेज गो टू आवर फ्रेंड हु इज फिजिकली मेंटली स्ट्रांग एंड हेल्थी। सो प्राण जो है वो परम मित्रम है, प्राण एवं परम सखा, इसको एंड प्राण तुल्य परो बंधु, नास्ति नास्ति बरहा नस्यो। सो प्राण ही सब कुछ है, इसको एलिवेट करना, इसको प्राण शक्ति को बढ़ाना, ब्रीदिंग के एक पैटर्न को सही अपनाना हमारी हेल्थ को ठीक रखता है। उसको बढ़ाने के लिए आपको दो तीन चीजों का करना होता है। सबसे पहले आपको बेली ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग, जिसमें हम अपनी बेली को एक्सपैंड करते हैं, डायफ्राम नीचे आता है, जैसे हम इनहेल करते हैं, और उसके बाद
पूरा जैसे गुब्बारे को फुलाया जाता है उस तरह से बेली से ब्रीथ करते हुए, अपनी चेस्ट को एक्सपैंड करते हुए नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करते हैं। और इसी तरह से बलून को, जब बलून की हवा निकाल दी जाती है, उस तरह से हम अपनी पूरी ब्रेथ को बाहर निकाल के बेली को पूरा अंदर, नेवल को पूरा अंदर कर देते हैं। तो दिस इज बेली ब्रीदिंग, विच इज वेरी वेरी इफेक्टिव, और इसका हमारी मेंटल हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और इसमें एक चीज और होती है जिसमें आपका इनहेलेशन से बढ़कर आपका एक्सहेलेशन, योर एक्सहेलेशन शुड बी longer than the inhalation. And third thing for breath is always breathe through your nostrils. आपको मुंह से ब्रीदिंग नहीं करनी है। एज अ डॉक्टर यू मस्ट बी नोइंग कि ब्रीदिंग का क्या इफेक्ट होता है, और इसका इफेक्ट फिर हमारे पूरे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। बहुत जरूरी होता है हमें डीप ब्रीदिंग करना, जिससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। कॉन्शियस और डीप ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए। आई थिंक आपकी आवाज Yeah, नहीं आ रही है। belly breathing when we were in college. So we were also told या that, if your belly, how you're breathing from your belly, so we were told keep a feather, it will fall down. We were taught that, about 2 decades back. So belly breathing, of course, is very important because then your diaphragm, it gives you more, it gives more space. Your diaphragm goes down and it gives more space to the lungs to, fill up with लंग्स oxygen. रिपकेज एक्सपैंड होता है, Definitely. करेक्ट करेक्ट। So, what you mean to say is that breathing तो normal है, सब breathe कर ही रहे हैं, we are alive. But the way we breathe makes a lot of difference. यस, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ And डिफरेंस। एंड focus on सेकेंडली your हम लोग breathing. पूरा, Yes, हम्म, yes, yes, ये please. Yeah. हम लोग ब्रीदिंग गलत कर रहे होते हैं ना। Hmm. हम इनहेलेशन में, मैंने देखा है बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को, अब उनको आ गया है ट्रेनिंग के बाद, कि वो Hmm. इनहेलेशन में उनका बेली अंदर जा रहा होता है, एक्सहेलेशन में उल्टा कर रहे होते हैं। Hmm. एक ये नहीं आता है, दूसरा मुंह से हम ब्रीदिंग करते हैं। तीसरा हमारा बैठने का, कि Hmm. हमारी आर स्पाइन शुड ऑलवेज बी इरेक्ट, यदि Hmm. होगी तभी तो पूरा अपनी ऑक्सीजन फ्लो ठीक से हो पाएगा। तो Correct. ये सब चीजों को भी ब्रीदिंग में हम Correct. And ब्रीदिंग you करेक्ट just करते you just told us one more thing. Can you hear me? हैं। या श्योर, या थोड़ा आई सा कैन हियर यू, टेक्नोलॉजी की या। प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली। हो क्या रहा है, when we are talking this is coming in the mobile also, so I'm trying to shut ओके that off. So ओके technology has its plus and negative points. We have to आई नो keep a balance of everything. So I don't know why the mobile is also catching. I'll have to learn that trick now. So Shakti, I want to know that you said one thing, that inhalation should be less and exhalation should be longer. And we've all heard that. Even I tell that. Can you explain why you say that? या एक्चुअली जब हम एक्सेल करते हैं ना, हम जितना ज्यादा लंबा एक्सेल करते हैं, उतना हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं, और उतना हम फिर रिलैक्स करते हैं। एक्सेलेशन से हम रिलैक्स करते हैं। इनहेलेशन गिव्स अस एनर्जी, एक्सेलेशन रिलैक्सेस आवर माइंड। Yeah. तभी फिर हमारी जो मेंटल प्रॉब्लम्स या इमोशनल इम्बैलेंस है, उसको ठीक करती है एक्सेलेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Wonderful. So the viewers must be must learn from it today कि belly breathing करो, जब भी हाथ रख लो पेट पे, and when you're breathing see that your राइट। tummy comes out, when you're breathing in, and always exhale longer than your inhalation. And when you're doing all this and focusing on your breathing, that is yoga, है ना Shakti? राइट That is राइट yoga. राइट, That इसका is focusing on your breathing. बिल्कुल बिल्कुल, इसका हमारे मन पर भी, हमारे मेंटल स्टेट पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि Absolutely. मन ही, ये माइंड ही है जो सब कुछ कर रहा होता है ना। Absolutely. माइंड पेंडुलम की तरह या तो पास्ट में जाएगा या फ्यूचर में जाएगा, वो Right. प्रेजेंट में नहीं रहता। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स के साथ रहा है, जिनको भी बहुत एंजाइटी स्ट्रेस था, उनको मैंने केवल ब्रीदिंग पर फोकस किया, विद द अवेयरनेस, डीप ब्रीदिंग, कॉन्शियस ब्रीदिंग। और हम यदि पूरा दिन इस तरह की ब्रीदिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सारे एलिमेंट्स ठीक हो जाएंगे। एब्सोल्युटली, यही माइंडफुलनेस है ना, यू आर फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट माइंडफुलनेस, मोमेंट। साइकोलॉजी यस, इसकी साइकोलॉजी इसकी ये है, जो मैं समझती हूँ, कि हम प्रेजेंट मोमेंट राइट, में जब हमारी सारी थॉट्स कंसंट्रेट करके ब्रीदिंग पे आ गई हैं, तो इधर और उधर तो कुछ करेक्ट, कुछ ही नहीं रहे ना, देयर आर नो थॉट्स कमिंग, सो यू आर टोटली ऑन योर प्रेजेंट बिकॉज ब्रीदिंग इज योर प्रेजेंट। सो राइट। योर ब्रेथ इज तो योर लाइफ। माइंड, और आप यस माइंड, या ये शक्ति या माइंड को कंट्रोल करने के लिए ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल इंपॉर्टेंट प्ले है, करती है। एब्सोल्युटली। और बिल्कुल या हमारे उपनिषदों में भी दिया है,
अमृतो बिंदु उपनिषद में बहुत अच्छा ये दिया है कि माइंड ही सब कुछ कर रहा होता है। मन है मनुष्य या कारणम बंध मोक्षो। मन एब्सोल्युटली, ही है हमारे बंधन, ये माइंड ही है हमारे बंधन का कारण है, और माइंड ही है लिबरेशन का। तो हमें एब्सोल्युटली, अपने आप बीमारियों बीमारियों से डिजीज फ्री करना है, लिबरेशन चाहिए फ्रॉम ऑल द डिजीजेस। तो हमें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और एब्सोल्युटली मन को कंट्रोल करने वाला है ब्रेथ। ब्रेथ। और दैट्स सो सोचो, या इम्पोर्टेंट। एंड सोचो हम लोग सब लाइफ, पीपल आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ इनवॉलेंटरी यस, ब्रीदिंग, सांस लिए जा रहे हैं। यस, और एंड बिल्कुल। दैट सांस, दैट ब्रीथिंग इज सो इम्पोर्टेंट, nobody bothers to think of it. And राइट, I'm so thank you that you're bringing this to the social, to the society and to people, that breathing is your life and you have to take care of your breathing the way you take care of your diet. बिल्कुल, बिल्कुल, Diet, we बिल्कुल। come to diet now. So, देखो, we have been talking of physical diet, तो हम सबने खाया, अच्छा खाओ, balanced diet खाओ, this we've been taught right from the childhood. But इसका राइट, असर मेंटल हेल्थ पे भी पड़ेगा, ये किसी ने बताया ही नहीं. In fact, Shakti, I would बिल्कुल। like to tell you that while I was doing my MBBS from KGMC, we were always या, eating hurriedly, एक लगे खाया भाग गए लेक्चर, ये अभी भी बच्चे ऐसे ही करते हैं. सो राइट, राइट। वहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वहीं से स्ट्रेस स्टार्ट हो रही है, हाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी स्टार्ट हो रही है. सो ईटिंग, करेक्ट। you eat, how much you eat, what you eat, it's all so important. Nutrition. So how यस, does it affect your बिल्कुल। mental health? Because it does. How does it affect? Can you या, throw some light on that? हाँ, इट हैज, इट रियली इफेक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ। या फिजिकल के साथ तो मेंटल का कनेक्शन ही है, गट के साथ ब्रेन का पूरा कनेक्शन है। बिल्कुल. सो हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छा बोला जाता है कि जो भोजन ही हमारे जीवन का कारण है, जिससे हम जीवित हैं, और भोजन ही हमारी बीमारी का कारण है। बिल्कुल. सो उसपे चीजें बहुत अच्छी बताई गई हैं। हम्म. हितबुक, मितबुक और ऋतबुक। हम्म. हितबुक मतलब भोजन करे जो हितकारी हो, विच इज बेनिफिशियल फॉर आवर हम्म. बॉडी एंड माइंड। हम्म. देन मिथ बुक, मिथ बुक मीन्स आपको एक लिमिटेड पोर्शन खाना है। आयुर्वेद में तो बताया है कि अंजुलि भर, जो एक हाथ में जितना आता है ना खाना, बस हम्म. उतना ही खाना चाहिए हमें। लिमिटेड Imagine. फूड टू टेक। Yeah. देन ऋत बुक, जो जिसके जो साधन, जिस साधन से आया है, साथ में हम्म. आपको सीजनल खाना खाना चाहिए। आप ऋतु के अनुसार खाना खाएं। हम्म. आप आराम से शांति से खाना खाएं। ये नहीं कि हम बिल्कुल. साथ साथ मोबाइल यूज कर रहे हैं, टीवी के साथ हम्म. रीडिंग, तो उसका हमारी मेंटल हेल्थ पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट आएगा, क्योंकि हमारा Absolutely. कॉन्सेंट्रेशन खाने पर है ही नहीं। हम उसके रस को, हम उसके स्वाद को समझ ही नहीं पा रहे हैं, Right. तो हमें रिलैक्स भी नहीं कर रहा है। प्लस हमें इनके टाइमिंग्स कि सनराइज के बाद और सनसेट से पहले। हाँ. सो आई मेक श्योर दैट आई हैव माई डिनर, दो आई टेक ओनली 2 meals इन अ डे। हम्म. लेकिन रात को यदि कुछ सूप या कुछ लेती हूँ, तो Yeah. मैं 7 बजे से पहले पहले लेती हूँ। आफ्टर 7 आई डोंट टेक एनीथिंग। हम्म. सो हमें सनसेट के बाद हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सनराइज में हमारी जो मेटाबॉलिज्म है, और सनसेट के बाद वो स्लो हो जाती है। लो हो जाए. और हम उस बात को खाकर, ज्यादातर लोग तो लेट खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, तो आपके डाइजेशन को तो टाइम मिला ही नहीं है। और Absolutely. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आयुर्वेद में दिखाई गई है कि आपको 50% अपना जो पेट है वो भोजन से भरना है, 25% विद वाटर, एंड 25% यू हैव टू लीव फॉर द स्पेस एंड एयर, खाली छोड़ दें। तो Correct. केवल 50% ही आपको खाना खाना है। हम्म. लेकिन हम लोग तो यहाँ खाना भर लेते हैं, Absolutely. और दुनिया भर के बाद दुनिया भर का बाहर का भोजन खाते हैं, विच बिल्कुल. इज रियली अनहेल्दी। हम्म. आज की जनरेशन के लिए मैं ये स्पेशली कहना चाहूंगी, जो बाहर से ऑर्डर करके हम्म. खा रहे हैं, हम्म. उन्होंने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा कि किस कंडीशन में वो खाना बन रहा है, किस हम्म. मन से खाना बनाया जा रहा है, हम्म. हाइजीनिक है कि नहीं है, कौन से ऑयल यूज किया जा रहा है, इन सब हम्म. चीजों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इसका इम्पैक्ट हमारा पूरा हमारी हेल्थ पर ही आता है। फिर हम Absolutely. पैकेट वाला फूड खाते हैं। हम्म. फिर इसके बाद एक और चीज है, हमें खाने के बाद एकदम से लेटना सोना नहीं है, हमें वज्रासन में बैठे, विच इज वेरी गुड फॉर आवर हम्म. डाइजेस्टिव सिस्टम। हम्म. और हम वॉक कर सकते हैं। हम्म. सात्विक साफ भोजन तो खाना ही है। हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में तो अन्न को औषधि माना गया, अन्नम औषधम। तो यदि हम अन्न को औषधि की तरह खाएंगे, तो वो हम्म. हमें ठीक रखेगा, और यदि हम उसको बहुत ज्यादा खाएंगे खाना, हम्म. तो हम ऑटोमेटिक बीमार पड़ेंगे, और फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, क्योंकि लेथार्जिक रहेंगे, मेंटली हम लोग और धीरे धीरे स्लो होते जाएंगे। हमारा हम्म. रोज के जो हमारे काम है, ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये सबका भी हमारे
जो ये है फूड की वजह से भी इम्पैक्ट होता है, Yeah, टाइमिंग्स very हमारे गलत। wonderful, wonderful. Absolutely right. I totally agree with you. कहा जाता था कि क्या कहते थे कि खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। जीने के लिए, करेक्ट ईट ईट टू लिव, करेक्ट। डोंट लिव टू ईट। क्योंकि लिव टू ईट तो आप देखो सारे रेस्टोरेंट्स भरे पड़े हैं। दैट्स गुड, यू गो आउट वंस इन अ वाइल। मॉडरेशन इन यस एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ खाओ, मॉडरेशन यस, रखो। एंड राइट एज यू राइट सेड राइट, कि थोड़ा खाओ, लीव सम स्पेस फॉर ऑक्सीजन, एयर, डाइजेशन। पूरा यस। उसको याद से भर के मत खाओ। और बिल्कुल अब तो ये बिल्कुल। और कहते हैं, या अब तो ये कहते हैं कि सीजन, अब तो ये कहते हैं कि स्मॉल स्मॉल मील्स खाओ। यू अगर आपको हाँ, टाइम नहीं खाना एंड यू कैन टेक स्मॉल मील्स, डॉक्टर्स डू से दैट। राइट सो अगर आपको राइट, बहुत ब्लोटिंग हो रहा है एंड एसिडिटी हो रहा है, बट ऑफ कोर्स लाइक यू हाँ, सेड कि प्रॉपरली टाइमली खाओ। सनसेट से पहले ही खा लो, है ना? सनसेट से पहले खा लो, यही बोला ना आपने? यस यस यस, सनसेट से पहले, राइट इट्स राइट। वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सनराइज आई, के बाद और सनसेट से पहले, हाँ, सनराइज के बाद और सनसेट पहले, इट्स सो डिफिकल्ट। सनसेट से पहले आई एम अ खाएं। डिफॉल्टर। मैं तो आराम से बहुत देर खाती हूँ। सो इट्स वेरी इजी टू प्रीच बट टू फॉलो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई ट्राई टू मेक अ चेंज सो आई एवरीवन नो एल्स। आई, ये भी देखा गया है बिल्कुल। शायद, लॉट ऑफ हार्ट अटैक्स हैपन अर्ली मॉर्निंग स्पेशली इन विंटर्स। सो मेरा तो ये हम्म मानना है, पीपल व्हेन दे गो आउट टू वॉक एंड ऑल, मेरा तो ये मानना है हम्म कि इट हैज समथिंग टू डू by being very empty stomach in the morning and going out for a brisk walk, like you have your dinner, उसके बाद सो हम्म जाते हो, फिर वो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर सुबह भूखे पेट उठ के बाहर चले जाते हो आप टहलने, तो हाइपोग्लाइसीमिक हम्म, आप वैसे ही हो। ग्लाइसेमिक हो तो जाते हैं, शुगर बिल्कुल कमी है बिल्कुल आपके बिल्कुल, अंदर, रात को कम डाइजेस्ट हो हो जाता है। चुकी है 4 आवर्स में वो, योर फूड हैज बीन डाइजेस्टेड, मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक है। सो दैट इज राइट। आई टेल माई क्लाइंट्स दैट ऑलवेज टेक अ कप ऑफ टी और 2 बिस्किट्स और समथिंग बिफोर यू गो फॉर अ अर्ली मॉर्निंग वॉक, ताकि ब्लड शुगर बिल्कुल लो ना हो जाए। लो दैट ना हो जाए। इज इफेक्टिव, या सो ये एज उनके लिए है जो डायबिटिक्स है, लेकिन जैसे जिनका बीपी हाई रहता है, राइट, उनको फिर थोड़ा सा और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। बीपी लो वालों के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, और हाइपरग्लाइसीमिक के साथ भी यही रहता है कि वो हम्म एम्प्टी स्टमक गए, उन्होंने कुछ नहीं खाया तो ग्लूकोज की कमी हो जाती है। हम्म और लेकिन जिनका हाई रहता है, या जो पहले से ही इतना खा लेते हैं रात को, जिनका डाइजेशन, रात को सोए नहीं, फिर डाइजेस्ट ही नहीं हुआ खाना, और सुबह उठकर गए, तो या जिनका कोलेस्ट्रॉल है, जिनकी आर्टरीज बिल्कुल ब्लॉक्ड है, तो उनका भी हार्ट अटैक का तो उनका रिस्क बना ही रहता Hmm. है। So very और nice. You've told us so much about breathing. You've told us about yoga. You've told us these are all lifestyle, eating, sleeping भी time से एक्चुअली 7 to 8 hours of रात की नींद भी should also be पूरी, क्योंकि वेरी because if you इंपॉर्टेंट। don't sleep in the night तो तुम्हारे गुड हार्मोन्स नहीं निकलेंगे, मेलाटोनिन नहीं निकलेगा जो कि रात को निकल के आपका वियर एंड टियर रोकता है। तो हैव अ नाइट स्लीप। यस, पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया, शक्ति है ना, आर डेज वो बेटर, बिल्कुल। एटलीस्ट वी यूज्ड या टू स्लीप एट नाइट। Now everybody is awake at या night and they are sleeping in the daytime, and then they are stressed बिल्कुल, and anxious. तभी तो mental illness is on the rise. बहुत है। बहुत mental illness क्योंकि and आज की जनरेशन को ना, दे आर जस्ट रनिंग एंड रनिंग, उनको खाली ये होता है कि हम और ज्यादा पावर, पैसा, फैसिलिटीज। हमारे टाइम पर वो फैसिलिटीज कम थी, लेकिन अच्छी हेल्थ थी। वी यूज्ड टू गो टू स्कूल वॉकिंग, हम 5-5 किलोमीटर चल के जाते थे, हमें वो सारी फैसिलिटीज नहीं थी, तो हम हेल्दी थे। आज सारी फैसिलिटीज है, एक क्लिक में इनके घर में खाना आ जाता है, तो आप अपने आप ही बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। and एक्सरसाइज but नहीं हो रही है। and nobody is happy. I mean, I don't see happiness around. When I in fact I've just started my Insta series कि हंसना जरूरी है, laughter is the लाफ्टर, या best medicine. Laughter तो खत्म ही हो गया है लोगों के चेहरे पे। बिल्कुल They're all, बिल्कुल you just बिल्कुल। see and you'll find it very funny if you observe people around you, खाते उठते बहुत कम लोग हंसते हुए genuinely दिखेंगे। And करेक्ट if they are करेक्ट करेक्ट। laughing, they're either laughing at someone or about someone rather than genuine happiness. जी, बिल्कुल Genuinely. अंदर से हंसी नहीं आ रही है, So हाँ, क्योंकि happiness इतना तो हमारा स्ट्रेस। मंत्रा है। If you are happy, you are बिल्कुल successful. So how do you बिल्कुल। incorporate happiness into yoga and everything? What is ओ your योगा, या सो इसमें भी हमें योगा के लिए ना स्मॉल और कॉन्शियस, आपका कॉन्शियस रहकर आपको अपनी हेल्थ की तरफ जाना है। जैसे आपका बहुत ज्यादा वो रहता है, आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा है। अभी भी आपने ये अर्नस्ट एंड यंग की जो एक गर्ल है, जिसका अभी बीच में 3-4 दिन पहले एक केस आया था, हम्म हूँ 5
ड्यू टू दिस थिंग डिप्रेशन एंड ऑल ड्यू टू हम्म ओवर वर्कलोड। तो हम्म ये आज की जनरेशन के पास बहुत ज्यादा ये वाली प्रॉब्लम है, उनके पास खाने पीने का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप केवल 10 मिनट्स अपने लिए निकालें, स्टार्ट करें विथ 10 मिनट्स। आप 10 मिनट की स्ट्रेचिंग कर लें, सिंपल स्ट्रेचिंग कर लें उठकर। आप रात को 5 मिनट 10 मिनट जल्दी सोएं और हम्म सुबह 10 मिनट जल्दी उठें और हम्म अपनी स्ट्रेचिंग करें, हम्म ब्रीदिंग कर लें। 5 मिनट की ब्रीदिंग कर लें, कुछ नहीं टाइम तो 3 मिनट से स्टार्ट करें। हम्म एटॉमिक हैबिट। आप यदि आप धीरे धीरे आपकी फिर वो आदत हो जाएगी हम्म आपको, क्योंकि जब योग आपको एनर्जी देगा पूरा दिन ऑफिस में, आपको खुशी देगा, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, आपके हम्म हैप्पी हार्मोन का सिक्रीशन होगा, तो हम्म ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, तो आपका हम्म स्ट्रेस लेवल कम होगा ऑफिस में। और हम्म माइंडफुल पूरा दिन, मैंने हम्म अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये किया है, हम्म जिसमें मैंने जो जिनको बहुत स्ट्रेस रहता था, हम्म और उन्होंने जब मुझे आके बताया तो मुझे लगा दिस इज रियली रिवॉर्डिंग। हम्म केवल आपको माइंडफुल रहना है, अवेयर रहना है, पूरा दिन आप अपनी ब्रेथ को फोकस करेंगे, हम्म माइंडफुल रहेंगे। आप कोई भी काम कर रहे हैं, सोते बैठते खाते गाते घूमते फिरते, आप केवल अपनी ब्रेथ को फोकस करें। आप 24 आवर्स, मतलब जब तक आप सोए नहीं है, ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे अवेयरनेस होके, तो आपको अपने आप आपको लगेगा कि मेरा स्ट्रेस लेवल कम होता चला जा रहा है। हम्म प्लस जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, सारा टाइम डेस्कटॉप पर बैठे रहते हैं और उठ नहीं पाते, उनके लिए 20-20-20 का एक रूल होता है। 20 मिनट्स बैठने के बाद आप केवल 20 सेकेंड्स के लिए उठेंगे और 20 स्टेप्स चलकर जाएंगे। दिस इज सो सिंपल, बहुत इजी है। 20 मिनट्स तक आप बैठे हैं तो आपको लग रहा है आप बैठना हो गया, आप 20 सेकेंड्स के लिए उठिए, चलकर जाएं, 20 स्टेप्स ही केवल जाने हैं, और फिर करेक्ट वापस आके अपना काम करें। तो इट विल रिलैक्स योर माइंड ऑल्सो, आपको रिजुविनेट करेगा। आप साथ में ब्रीदिंग करेंगे, स्टेप्स को यदि अवेयरनेस के साथ करेंगे, और फिर आकर आप अपने काम में लग जाएंगे। तो वंडरफुल ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। प्लस आप कॉन्शियस हो रहे हैं। और आपको इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी ब्रीदिंग के लिए। रात को सोने से पहले केवल 5 मिनट की चंद्रभेदी प्राणायाम है, जो कि ल्यूनर एनर्जी को बढ़ाता है। हमारी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है ना, दिस इज कॉल्ड इड़ा नाड़ी, ल्यूनर एनर्जी के लिए, So एंड we are राइट we, इज we are just about to end the meeting. So let's finish it off fast because ये एकदम से बंद हो ऑल जाएगा. राइट, ओके। Yeah, सो बस आपको लेफ्ट से ब्रीथ इन करना है, राइट से ब्रीथ आउट करना है। ठीक wonderful. है, इसको आप सोने से पहले कर लेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है। Right, आपको जैसे आपका स्ट्रेस लेवल और आपको दूर करेगा, साथ में आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो correct. नेक्स्ट डे आप एकदम एनर्जाइज्ड उठेंगे। जब भी स्ट्रेस हो, लेफ्ट से इनहेल करें और राइट से एक्सहेल करें, दैट्स इट। Wonderful. और इससे ज्यादा Wonderful. कुछ भी आपको नहीं करना है, आप ठीक हो जाएंगे। और साथ में कुछ अफर्मेशंस हैं, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करें लाइफ के अंदर। Yeah, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। yeah, अपना हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहें। yeah. आप अफर्मेशंस करें, आई एम हैप्पी, आई एम एम्पावर्ड, आई एम Wonderful. ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। तो Yeah. धीरे धीरे एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट द थिंग्स एंड You are doing a पीपल। wonderful job. You are doing a wonderful job, Shakti. Yeah, we're थैंक doing यू। empowering the youth. That is what we can do. Like we can share our knowledge with others, and I hope they listen and I hope they take it. And राइट, because lifestyle diseases are really taking an upward turn. So the need of the hour, as you have just told us, is to focus on your breathing, the way you breathe, the way you eat, how much you eat. On top of it, your mental health is a priority. I would also like to say that if you have any problem anytime, feeling unease, feeling distress, feeling anxious, don't forget that help is always available. Don't feel stigmatized. Mental health is as treatable as physical illnesses. So go out there, करेक्ट take करेक्ट, counselings, take sessions, go to a doctor, take help, because life at बिल्कुल। the end of the day, life is very precious. And like you all, हम्म, yeah, like you all said that, like you just said that keeping everything happiness, keeping happiness in you is going to really, really, make you feel energized. It will make you feel motivated, and your happiness is your own creation. That's what I learned राइट, from your talk today. And the way you eat, the way you breathe, the way you mix up with people. I call it the emotional diet. What you think, what you see, what you eat, the way you एग्जैक्टली। interact with people. So be careful of your physical nutritional height,
and your emotional height as well. Thank you so much, Shakti. Thank you so much You're for the good welcome. work you're Thank doing. you so much And for yeah, inviting and me. yeah, And yeah, I hope we'll this meet. will help. Yeah, Yeah, we'll meet thank you. again. We'll meet again, and we'll come with All more right. tips for the youth about yoga, meditation, and you're doing a wonderful Sure. job. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Bye. Thank Bye. you.